Hello guys, today I will be analyzing my CA Foundation Jan 2025 accounts paper. First, I have started with question number 6, which was about the company's accounts. उसमें the question was all about authorized was 20 lakhs rupees. So means 2 lakhs authorized share capital and but they have issued 3 lakhs. So मैंने सोचा कि ऑथराइज से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता एंड उसके हिसाब से मैंने प्रो रेटा किया कर दिया पूरा बट ऐसे ही आंसर में दे हैव इनवाइटेड एप्लीकेंट्स फॉर 3 lakhs सो उन्होंने नॉर्मल बेसिस पे ही किया है एज यू कैन सी ICI's आंसर दे हैव डन इन नॉर्मल बेसिस नॉट ऑन प्रो रेटा मैंने पूरा प्रो रेटा बेसिस पे किया है दैट्स व्हाई ऑल एंट्रीज आर रॉन्ग एंट्रीज आर राइट्स बट दैट अमाउंट्स all are wrong as you can see फर्स्ट एंट्री राइट है बाकी सब एंट्री रॉन्ग हो गई due to a silly mistake by ICI and by me also. After that, working out वगैरह everything went wrong, but that interest calculation, interest on calls in advance, and which was right. That's why I got because of that 1.5 marks and half marks for that first entry. Both calls in advance got right. First call and final call. And I total got 2 marks as you can see 1.5 for working note and 5.5 for first entry being right. After that, I am very weak at theory questions. After question number 6, I directly jumped to question number 4, which was all about partnership accounts. In partnership, I have to prepare the revaluation account, partners capital account, and balance sheet. There are two alternatives method. That's why you can see here the revaluation profit and my profit is not same. I have done with another alternative method. That's why they have given me 4 marks. You can see partners capital account is getting valid. That's why I got whole 4 marks for that. After that balance sheet, everything is properly. My balance sheet is also tallied. Here I got 2.5 marks. You can see everywhere ICA has given step marks for all. For evaluation 4 marks, for partners capital 4 marks, and for working notes also 4 marks, 12, and 2.5 marks for balance sheet, total 14.5 marks of a joint life policy. Alternative answer also they have given. After that, I started with question number 4B after 4th A. It was all about incomplete records from chapter 9. In that, मेरा जो फॉर्मेट था अलग था ICI के जो फॉर्मेट है उससे फर्स्ट मैंने सब असेट्स लिखे देन लाइबिलिटीज एंड ICI ने दोनों बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखा था बट देन ऑल्सो आई हैव गॉट होल 2 marks एज यू कैन सी मेरा दोनों आंसर मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज का
टोटल सब मैच हो रहा था आईसीआई के आंसर से। दैट्स वाई बैलेंस शीट के लिए मेरे को होल 2 मार्क्स उन्होंने दे दिए थे। एंड आफ्टर दैट वर्किंग नोट, एज यू कैन सी, वर्किंग नोट वाज आल्सो प्रॉपर, बट मेन जो आंसर था उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉब्लम हो गया था। ओपनिंग माइनस करना था जो मैंने प्लस कर दिया था, एंड क्लोजिंग कुछ गड़बड़ के कारण पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। But then also they have granted me 0.5 marks for that, and total I got 2.5 marks from 4B. After that I jumped to question number 2, uh, which was all about depreciation. डिप्रिसिएशन में मेन जो फ्राइट का था उसमें गलती हो गई थी। फ्राइट ऐड नहीं होता है ये वाले सम में, एंड बिकॉज ऑफ दैट मशीनरी वन का जो स्टार्टिंग का बेस ही था वही पूरा गलत हो गया था। बट फॉर मशीनरी टू, होल was right, as you can see here. Total cost 9,20,000 मैच हो रहा है, बट 7,10,000 नहीं आता, वो 10,000 गलत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब वैल्यू ऑफ मशीन ही गलत आ गया पूरा। मशीन नंबर 2 का डिप्रिसिएशन तक राइट था, जब वैल्यू की मशीन नंबर 1 में पूरा गलत आ गया वो। एंड फिर डिप्रिसिएशन वगैरह खाली वो जो फर्स्ट स्टेप राइट था उसके लिए मेरे को 0.5 मार्क्स दे दिए एज अ स्टेप मार्क। एंड आफ्टर दैट मशीनरी अकाउंट भी बनाने को बोला था इन्होंने आंसर में, मैंने बनाया, बट उसमें खाली 2-3 चीज राइट थी, बाकी सब मशीन की वैल्यू वगैरह सब स्टार्टिंग में गलत होने के कारण पूरा रॉन्ग हो गया सम। बाई बैंक एंड इधर भी बाई बैंक, ये दो चीज राइट के कारण इन्होंने 1 मार्क दिया, स्टेप मार्क। देन वर्किंग नोट में डिप्रिसिएशन जो 6 मंथ्स का निकलने, that was also right, so for that also they have given me 0.5 marks as step marks. Then I jumped to 2B, जो BRS का था। BRS में आई थिंक सो 10 एडजस्टमेंट थे कुछ, एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, सो आई स्टार्टेड विद नेगेटिव। 2 entries were wrong, बिकॉज ऑफ दैट दो जगह आउट ऑफ 10 उन्होंने 2 जगह रॉन्ग था, सो दैट टोटल भी रॉन्ग हो गया, तो टोटल 3 मार्क्स उन्होंने कट कर दिए। I got 7 from here. Total I in question number 2 I got 9 marks. एंड मैं ऐसे ही अलग लिखता था, फर्स्ट ऑल ऐड फिर देन लेस, तो ये बेस्ट तरीका था प्रेजेंट फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन। एंड देयर आर alternative methods also for the solution. इसके बाद आफ्टर सेकंड क्वेश्चन आई jumped to question number 3. Question was so lengthy, it was around, I think so, started from page number 9, 10 and goes till 11th का half, यानी approximate 2 pages का ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए था। ऐसे also given me all step marks, which जहाँ भी राइट आया हर जगह उन्होंने टिक करके मार्क्स दिया है। इधर टोटल मिस्टेक हो गया, आंसर राइट ही था, बट वो 1,10,000 माइनस करने की जगह खाली 11,000 माइनस किया है। मैंने लिखा बराबर है, बट कैलकुलेशन में गलती के कारण यू कैन सी
ये गलत हो गया। इसके कारण मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भी गलत, एक सिली मिस्टेक के कारण। इस पेज में सब राइट ही है। इंटरेस्ट पेड रॉन्ग हो गया एक, बाकी सब राइट है। डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये दो रॉन्ग है, एंड वो इंटरेस्ट, सो नेट प्रॉफिट भी रॉन्ग हो गया। देन वर्किंग नोट्स फॉर दैट डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट राइट है, सो फॉर दैट ऑल्सो स्टेप मार्क्स उन्होंने दिया है। इंटरेस्ट स्टेप मार्क्स इधर भी दिया है। इंटरेस्ट 6000 जो है वो राइट है। आफ्टर दैट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट उसका भी स्टेप मार्क्स उन्होंने दिया है। बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं है, आप लोग देख रहे हो दोनों जगह मैंने अलग लिखा है, क्योंकि बहुत बार अगर एसेट एक साइड भी राइट हो गया तो उसका वो लोग मार्क दे देते हैं, स्टेप मार्क्स। सो इसके लिए जो जो भी राइट था वहाँ उन्होंने टिक करके मार्क्स दे दिया है, 2.5 मार्क्स दिया है। एंड लाइबिलिटी साइड भी उन्होंने मार्क्स दे दिया है। आप भी जब भी जो टोटल आए वो टोटल लिख देना, कंपल्सरी नहीं है कि दोनों सेम ही होना। अगर एक साइड भी राइट है, ICI will definitely give you marks. Then I have started with question number 3B. पार्टनरशिप से था ये क्वेश्चन। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्स्ट पार्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो रॉन्ग है। एंड जो सेकंड पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें जो एक्स का टोटल है वो मेरे को 36,50,000 आया, बट ICI को 36 लाख आया। आई थिंक सो टोटलिंग एरर और समथिंग प्रॉपर नहीं है, बट फॉर्मूला एकदम राइट है। एंड जो सेकंड वाई का है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट है, सो फॉर दैट 0.5 मार्क्स दे दिया इन्होंने आउट ऑफ 5। आई गॉट 9 मार्क्स फ्रॉम 3A एंड 1 मार्क फ्रॉम 3B, सो टोटल फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन आई गॉट 10 मार्क्स। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स थे 12 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रू एंड फॉल्स में जो फर्स्ट था बहुत गंदा लिखा है, अभी पढ़ने के बाद लग रहा है। सेकंड फॉल्स, 1.5 मार्क्स दिया उन्होंने फॉर क्वेश्चन सेकंड। फिर थर्ड, फर्स्ट राइट ही लिखा था फॉल्स, बट बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस आई चेंज टू ट्रू, बट 0 मार्क्स रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 4 राइट लिखा था एंड दे हैव गिवन मी 2 मार्क्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, question number 5th, true. I think so. Why they have given me 1 mark, I also don't know. For question number 5, एकदम प्रॉपर उन्होंने जो लिखा है वो सब लिखा हुआ है उसमें, मेरा आंसर में। आई थिंक सो बहुत मतलब छोटे में समझाया उसके लिए they have given only 1 mark for question number 5th, and after that question number 6, which was also right answer, and they have given me 1 marks for that. Explanation I think so proper नहीं था, that's why they have given me 1. I total got 5.5 only out of 12. After that मैंने थियरी कुछ भी पढ़ा ही नहीं था, सो क्वेश्चन B1 भी तो
बहुत गंदा लिखा है। डायरेक्ट 1C। 1C was all about sales written book. Sales written book. They have given me 3 marks out of 5, जिसमें मेरा पूरा आंसर राइट है। ऐसे के आंसर से एक वर्ड टू वर्ड सेम है। टोटल लेस डिस्काउंट सब कुछ सेम है। देन ऑल्सो दे हैव गिवन ओनली 3 marks आउट ऑफ 5 एंड 1 भी तो मेरा पहले से ही खराब है। फुल 16260 सब कुछ राइट है। देन ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव only given me 3 marks out of 5 marks. I hope you understand कि ICI कहाँ marks कट करता है and follow me for such more content and shortly I will be also uploading laws video where in law also ICI reduce marks. Thank you so much for watching. Thank you.